Cada pasta farinha, pasta farinha. Very good morning to everyone. Jai Jagannath, welcome you all. I hope you all are doing great. Am I audible? Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning to everyone. So yesterday we were discussing about peasants revolt, and in the peasant revolts we discussed about the Indigo revolt. Yeah. So after Indigo revolt, there is one more important revolt which was done by peasants. That is Deccan riots. Yesterday I had explained you about Deccan riots, but some network issue was there, so it was not completed. So Deccan riots 1875 ରେ ହେଇଥିଲା mainly, and ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା mainly Deccan वाला जो region ଅଛି ଆମର ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା. And you know Deccan is famous for black soil. Black soil ସେଇଠି ଅଧିକ ମିଳୁଛି. So black soil is very good for cotton production. ତ ସେଇଠି ଅଧିକ cotton production ହେଉଥିଲା. So I had explained you कि ଏଇଠି कि यूएस रे सिविल वार ଯେତେବେଳେ 1861 ରୁ 65 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ୍ ସିଭିଲ୍ वार ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେରିକାରୁ ୟୁରୋପକୁ ଯେଉଁ କଟନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା. ସୋ ତା'ର ଫାଇଦା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା, ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ କଟନ୍ର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଲା, ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା. ବଟ୍ ଯେମିତି ଆମେରିକାରେ ସିଚୁଏସନ୍ ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଗଲା, ତ ପୁଣି ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ କି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର କଟନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ. ସୋ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କଟନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା. ଇଣ୍ଡିଆରୁ କଟନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା. ସୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବେଶୀ ହତାଶ ଥିଲେ. ତା ଉପରୁ 30% ଟେକ୍ସ ଇନକ୍ରିଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ କିଏ? ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ. ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 30% ଅଧିକ ଟେକ୍ସ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନାକରୁ ପାଣି ଉପରେ ହେଇଗଲା ପିଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର. ତ ଦେନ୍ ତାପରେ ଖତରନାକ ଗୋଟେ ରିଭୋଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡେକେନ୍ ରାୟଟ୍ସ. ବହୁତ ଏମିତି ରିଭୋଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ. ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ 1879ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୁଝିଲେ. 1879ରେ ଗୋଟେ କାନୁନ ଗୋଟେ ପାସ୍ କରାହେଲା, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଡେକେନ୍ Peasants Relief Act. Deccan Peasants Relief Act ଗୋଟେ ପାସ୍ ହେଲା କି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଦିଆହେଲା. ଯେଉଁ ଟେକ୍ସ ଏତେ ଯେଉଁ ଲଗା ହେଉଥିଲା, 1879ରେ ଏଇ କାନୁନ ପାସ୍ ହେଲା, and according to this act some relief was provided to the Deccan peasants. Okay, so this was the next important peasant revolt. Next peasant revolt, important peasant revolt is Pabna revolt. Pabna revolt. So Pabna revolt actually केबे ହେଇଥିଲା? 1873ରେ ହେଇଥିଲା. एंड ये जो एटा कोड ହେଇଥିଲା, एटा एक्चुअली बेंगल रे ହେଇଥିଲା. बेंगल वाला एरिया रे ହେଇଥିଲା. ओके, एंड पबना रिवोल्ट कोण ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା. 1859 या 1859 ର କଥା. 1859 ରେ ଗୋଟେ एक्ट पास ହେଇଥିଲା, बेंगल टेनेंसी एक्ट.
1859 रे गोटे एक्ट पास होता दैट वाज बेंगल टेनेंसी एक्ट। सो लिसन 1859 रे बेंगल टेनेंसी एक्ट पास हैला। ई एक्ट माध्यम बेंगल रे जो टेनेंट्स माने थिले से टेनेंट्स मानक किछि माने गोटे इम्प्रूवमेंट टाइप ऑफ तांको पई फ्रूटफुल ताकर पई बेनिफिशियल ई एक्ट बेंगल टेनेंसी एक्ट जोटी कि टेनेंट्स मानक पई गोटे भलो एक्ट थिला। बट ई एक्ट रो फ्रूट्स को मझिरे जो जमीदार माने थिले ई जमीदार माने तार फायदा उठे दउथिले एंड जेहेतु आर फायदा टेनेंट्स मानंकु मिलिबार थिला किंतु टेनेंट्स मानंकु मिलु नथिला। काहाकु मिलुथिला? जमीदार्स मानंकु मिलुथिला। कोन मिलुथिला? तार फायदा। एंड फायदा जेहेतु जमीदार मानंकु मिलिला तो जेतेबेले टेनेंट्स को जना पड़िला कि जमीदार मान लगी आमको जो फायदा मिलता आमको सी फायदा मिलू नहीं तो सेतेबेले ये टेनेंट्स माने कौन कले एगेंस्ट द जमीदार्स मानकर एगेंस्ट रे टेनेंट्स माने कौन कले रिवोल्ट करथिले। एंड एठी ब्रिटिश गवर्नमेंट को से माने किछि भी माने क्षति पहुंचे नथिले जमीदार्स माननको एक्चुअली क्षति पहुंचैथिले। ओके एंड दैट इज द पबना रिवोल्ट ऑफ बेंगल 1873। तो लास्ट आउ गोटे बेंगल टेनेंसी एक्ट पास हैला जोटी की डायरेक्ट टेनेंट्स माननको देखिया पे मिलला कि से माननको टेनेंट्स माननको जो फायदाटा मिलला। सो मोर एंड लेस तीनटा हमें इंपोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट देखिलु तीनटा इंपोर्टेंट पीजेंट्स रिवोल्ट देखिलु। ओके सो एटा एतिकी जदि आमे करिया मेंस रो काम सरी गला बट प्रीलिम्स पय बहुत गुडा सब रिवोल्ट जाकर ना ईयर आउ तांकर लीडर एंड तार रीजन को जगह रे सेडा हितला सेडा देखिया पे मिलबो। एम ऑडिबल ना किछि वॉइस ब्रेक होछि? No, sir, all clear. ओके थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। एठी एक्चुअली भारी वर्षा हिची एंड नेटवर्क बोथे टिके अप डाउन हेई पारे सो दैट्स जदि किछि हेबो सो मते को जणाबे। ओके सो देन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 राइट द रिवोल्ट ऑफ the great revolt of 1857। सो रिवोल्ट ऑफ 1857 को बहुत गुड़ा स्कॉलर्स माने कहती इट वाज ए सिपोई रिवोल्ट आउ कौन कहती सिपोई सिपोई माने सिपाही सिपाही रिवोल्ट बा सिपोई रिवोल्ट किंतु स्कॉलर्स मानकर भितरे भी सेमानकर भी गोटे कंट्रोवर्सी अछि। किछिटा स्कॉलर्स कहती कि इटा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किछिटा स्कॉलर्स कहती कि इटा सिपोई रिवोल्ट किछिटा स्कॉलर्स कहती कि नहीं इटा सिपोई रिवोल्ट रो अधिक बट इट वाज नॉट ए नेशनलिस्टिक मूवमेंट। तो डिफरेंट स्कॉलर्स मानकर डिफरेंट मत अछि रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो ये जो सिपोई रिवोल्ट जो है आकु जो आमे कहू 1857 कोन एटा गोटे फर्स्ट सिपोई रिवोल्ट थिला नहीं एटा फर्स्ट सिपोई रिवोल्ट नथिला। बहुत गुड़ा सिपोई रिवोल्ट हमको 1857 रो रिवोल्ट पूर्वरु भी देखिया पे मिलथिला। सो 1764 रो ही सिपोई रिवोल्ट देखंतु देखिया पे मिलछि। 1764 रे बक्सर बिहार रो गुड जगह सेठी एक्चुअली गुडे अगेंस्ट मुनरो गुडे सिपोई रिवोल्ट देखिया पे मिलला। 1766 रे क्लाइव रो अगेंस्ट रे भी हमको सिपोई रिवोल्ट देखिया पे मिलथिला। 1806 रे वेलोर रे साउथ रे भी हमको गुडे सिपोई रिवोल्ट देखिया पे मिलथिला जोडी टीपू सुल्तान रो भी रोल थिला। सॉरी टीपू सुल्तान तो नथिबे टीपू सुल्तान रो पुओ तांकर रोल थिला। एंड तो एमिति बहुत गुडा रिवोल्ट हेछि 1806 रे 1824 रे बट
ये सब छोट बड़ सिपोई रिवोल्ट थिला बट 1857 रो रिवोल्ट आम लास्ट कनक्लूड करबा कि ये सिपोई रिवोल्ट तो थिला सिपोई रिवोल्ट सहित यहाँ गोटे नेशनल फर्स्ट नेशनलिस्टिक मूवमेंट और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी यहाँ थिला ओके एंड सो दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आसुची बट जदि क्वेश्चन एमती स्टेटमेंट वाइज आसुची कि 1857 वाज द फर्स्ट सिपोई रिवोल्ट सो नो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट सिपोई रिवोल्ट बहुत जगह होइतिला बट 1857 वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस it was a major revolt okay and that's a very important revolt and maximum question 1857 revolt रो ही आसुची okay so next हमें 1857 revolt उपरे पूरा भलो भाबरे हमें चर्चा करिवा कि से रिवोल्ट रो कारण कोन थिला व्हाट वाज द कॉजेस ता विषय फास्ट चर्चा करिवा कोन पई से रिवोल्ट हला तापरे से रिवोल्ट रो बैकग्राउंड देखिवा हमें ओके सेटा बैकग्राउंड देखिवा कि सेटा केमिति हेची कोन पई हेची तापरे इवेंट देखिवा इवेंट माने से रिवोल्ट रे कोन कोन को जगह रे केमिति कोन कोन स्टार्ट हेइथिला से इवेंट जाको भी देखिया पई चेष्टा करिवा इवेंट देखिला परे को जगह रे किए किए एक्चुअली लीड करिथिले देखि प्रीलिम्स पई इंपोर्टेंट को जगह रे को लीडर लीड करिथिले सेही जिंस भी देखिवा हमें तापरे नेक्स्ट मेंस पई सबुठ इंपोर्टेंट होची नेचर ऑफ द रिवोल्ट से रिवोल्ट रो नेचर कोन तापाई भी हमें जोटा कि मेंस रे बहुत थोड़ा एटा क्वेश्चन आसी छी बोथे प्रीवियस ईयर भी एई वर्ष भी मेंस रे ओपीएससी रो 1857 रिवोल्ट को नेकी क्वेश्चन आस्तला तो नेचर ऊपर भलो भाबरे ताकू हमें डिस्कशन करिवा तारो सिग्निफिकेंस कोन सेटा भी डिस्कशन करिवा ओके तो बहुत गुडा जिंस हमें डिस्कशन करिवा एंड देन डिस्कशन सरिला पोरे 1857 रिवोल्ट पोरे ब्रिटिश शासन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को हिसाब रे चेंजेस आनिला सहीटा भी हमें देखिबा इन द फाइनेंशियल फेज ओके बिकॉज मर्केंटिलिज्म फेज हमें बढ़ी चारिछु देन हमें इंडस्ट्रियल फेज बढ़ी चारिछु 1856 पर्यंत 1856 या वेरी गुड मॉर्निंग सो 1856 जाए इंडस्ट्रियल फेज को आम डिस्कस करूँ 1813 रु 1856 पर्यंत एंड मर्केंटिलिज्म फेज आम पढ़िलु इंडस्ट्रियल फेज पढ़िलु तापरे 1857 रो रिवोल्ट पळे आसिला सो दैट्स व्हाई एक्चुअली आम तापरे नेशनलिज्म पढ़िलु नेशनलिज्म पढ़िला परे तापरे रिवोल्ट देखिछु सी नेशनलिज्म लागि कोन कोन रिवोल्ट देखिया मिलला देन सबुठ बड़ रिवोल्ट होचे 1857 रिवोल्ट ताकू भी देखिबा एंड सी रिवोल्ट देखिला परे तापरे ब्रिटिश रो शासन केमिति चेंजेस हला क्वेश्चन एटा मेंस से आसी कि 1857 रिवोल्ट परे हाउ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस इटसेल्फ एटा ओपीएससी रे भी क्वेश्चन आछि एंड यूपीएससी रे भी क्वेश्चन आछि तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट सो सी क्वेश्चन को भी डील करबा एंड फाइनेंशियल फेज रे एक्चुअली टोटली देखिबा कि तांकर कोन पॉलिसी चेंजेस हला तांकर एडमिनिस्ट्रेशन केमिति चेंज करले सोशल पॉलिसी कोन केमिति चेंज हला सब जिंस हमें फाइनेंशियल फेज रे देखिबा ओके तो सब जिंस हमको देखियार अछि तो 1857 रिवोल्ट रो फर्स्ट हमें कॉजेस ऊपर बढ़िया ये कारण कौन थिला 1857 रिवोल्ट तो कारण तो बहुत गुड़ा सब कारण अच्छी ताकू आमे गोटे फ्लो चार्ट रे भी आमे बुझी परिबा तो आमे एठी ताकू डिवाइड करिया डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन रे तो ये फास्ट लिखो पॉलिटिकल कॉजेस राजनीतिक कारण बहुत एक्चुअली अच्छी पॉलिटिकल कॉजेस देन राइट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस देन राइट इकोनॉमिक कॉजेस okay then write religious causes then write military causes okay then write immediate causes
इमिडिएट कजेस। तो आम तार 6टा डायमेंशन डिस्कस करवा कजेस को। पॉलिटिकल कजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कजेस, इकोनॉमिक कजेस, रिलीजियस कजेस, मिलिटरी कजेस एंड इमीडिएट कजेस। सो फर्स्ट लिखा पॉलिटिकल कजेस। सो पॉलिटिकल माने राजनीतिक टाइप ऑफ कजेस कौन कौन। सो मेनली जो सेतबेले डालहाउस जेतबेले थिले से टाइम एक्चुअली 1856 पर्यंत डालहाउस थिले। एंड जो डालहाउस जो थिले तांके गुडे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जे आम डिस्कस कर सारिछु। सो सी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ताकू नहीं कि बहुत गुड़ाए सब राज्य प्रिंसली स्टेट्स माने नाराज थिले बिकज से माने डायरेक्टली एनेक्स कर दउथिले। जो भी प्रिंसली स्टेट्स रो गुटे लीगल तांकर जदि पुओ नाहांती तांकर निजर तो तांके माने सन एडॉप्ट करि परिबे नाही। एंड सन एडॉप्ट करि परिबे नाही एंड ताकू डायरेक्टली एनेक्स कर दउथिले। तो इटा भी गुटे पॉलिटिकल कारण थिला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके इवन अवध रो एनेक्सेशन इफ यू कैन रिमेंबर अवध को एनेक्स करा जाइथिला बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस कि अवध रे गवर्नेंस ठीक नहीं एंड बड़ चालाकी से अवध को एनेक्स कर देथिले। सो ये जो एनेक्सेशन ऑफ अवध यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉलिटिकल कॉजेस कि अवध बिकॉज अवध रे ही एक्चुअली बहुत गुड़ाए सब the situation was very sensitive and because the turmoil which was created by this Dalhousie administration and this kind of things by using different kinds of doctrine से एनेक्स करुले हड़प कर दौले सब जिनस। तो ये जो दुईटा मुख्य कारण आम लिखे पॉलिटिकल कजेस रे कि डलहाउसी रो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड डलहाउसी रो डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस एंड थ्रू मिस गवर्नेंस तांके अवध को भी एनेक्स करथिले। Okay, so these two reasons we can write in the political causes. Annexation of Awadh using doctrine of misgovernance. So next हमें administrative causes को टिके discuss करिया। So administrative causes we can write okay administrative causes right alien nature of British rule। ब्रिटिश माने जो प्रकार पॉलिसी जो प्रकार लॉ रेगुलेशन जाक इम्प्लीमेंट करिले ब्रिटिश माने जो हिसाब रे रूल करिले तो तांकर रूल रो नेचरटा आमर इंडियन नेटिव जो लोक माने थिले से माननकु लागिला एडा सब नुआ लागिला। टोटली तांकर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी नुआ थिला तांको मानु पई माने इंडियन लोक मानु पई ब्रिटिश शासन गोटे नुआ शासन परा लागिला जोटा कि से माने बुझी पारिले नै एंड जो जिंस बुझा पड़े नै जो जिंस कॉम्प्लेक्स लागे से जिनस डायरेक्टली आमर मन आसब ना। सो से लगे कि गोटे ब्रिटिश रूल हूँ एलियन नेचर तो तांकर एडमिनिस्ट्रेशन आंके जानी पारुनथिले। ओके एलियन नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल राइट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नुआ नुआ नु जो कानून तैयारी होतला से कानून जाक भल लागु नथिला हमर लोक मानकु। एंड बहुत जगह तांके कौन कले इंटरमीडिएरीज किंबा जमीदार्स मानकु गुंचे देथिले। इफ यू कैन रिमेंबर से माने ओल्ड जमीदार्स को गुंचे देथिले तापरे कॉर्नवालिस आसी कि तापरे पोर्नर बाता को रिवाइव करिया पे चेष्टा करथिले। तो रिमूवल ऑफ इंटरमीडिएरीज लाइक जमीदार्स
एंड तालुकेदार्स, जमीदार एंड तालुकेदार्स को से काढ़ी फिंगी देथिले। रिमूवल ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक जमींदार्स एंड तालुकदार्स। सो नेक्स्ट आम देखिए अबाउट सोशल कॉजेस। ये सोशल कॉजेस लिखा है सर ये जमीदार से आगे कौन था? तालुकदार्स, तालुकदार्स। सोशल कॉजेस या तालुकदार, TALUKEDARS। Then social causes, right? Annexation of Indian states, annexation of Indian states, rendered thousands of people unemployed। तो जेतबेले एनेक्सेशन करूथिले तांके को भी प्रिंसली स्टेट्स को, तो इंडियन स्टेट को एनेक्सेशन करिला परे तो इंडियन स्टेट्स रो जो प्रिंसली रूलर थिले बा सेमानकर आर्मी थिला बा सेमानकर जहाँ भी एम्प्लॉयड पर्सन थिले सबू अनएम्प्लॉयड ही जीवे। तो वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखा मिलता। वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी तो मनीष पाखे समय बहुत अच्छी, किसी भी जदि कौन गोटे होची तो से विद्रोह करिवो ही करिवो, स्पेशली यूथ। म्यूट योरसेल्फ प्रावती, म्यूट योरसेल्फ। So annexation of Indian states rendered thousands of people unemployed. Next slide. All right. Government inclination towards literates, government inclination towards literates as well as educated soldiers encouraged it to recruit the soldiers from high caste Hindu in return this factor brought caste sensitivity
विद इन बेंगल आर्मी ब्रॉडकास्ट सेंसिटिविटी विद इन बेंगल आर्मी। तो आम ये कौन लिखिलु कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थिला से सब बेले लिटरेट्स जे कि पढ़ा लिखा अच्छा एजुकेटेड सोल्जर्स मानू ही से माने रिक्रुटमेंट करुले माने तांके भर्ती करुले एंड सेटा भी हाई कास्ट हिंदू को ही एक्चुअली भर्ती करुले। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विच वाज एक्चुअली फॉलोड बाय दिस गवर्नमेंट। तो ये सब जिनस लगी कास्ट सेंसिटिविटी पड़े आसला। कास्ट सेंसिटिविटी जो पड़े आसला तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता छोट कास्ट बड़ कास्ट पढ़े लिखा को अलगा न पढ़ा लिखा को अलगा लिटरेट को अलगा इलिटरेट को अलगा एजुकेटेड अलगा अनएजुकेटेड को अलगा। तो ये जो अनएजुकेटेड इलिटरेट बा लोअर कास्ट लोक मानकर भितर गोटे अलग प्रकार भावना आसला। एंड ये जो मुद्दा जो कौन है परे हमको देखा मिलला रिवोल्ट रे। तो दिस इज अगेन ए सोशल कॉजेस यू कैन राइट। नेक्स्ट राइट इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस लिखंतु ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसी ब्रिटिश मानकर जो ट्रेड पॉलिसी थिला वन साइडेड ट्रेड पॉलिसी ता लगी कौन है ता लगी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा मिलला हमरो। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन माने डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो बिकॉज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पुणी अनएम्प्लॉयमेंट। So it rendered decline of handicraft industries. It rendered lakhs of artisans unemployed. handicap industry पर कौन रहना सो शुणु इकोनॉमिक कॉजेस ब्रिटिश मानकर जो ट्रेड पॉलिसी दैट इज द फर्स्ट कॉजेस एंड बिकॉज ऑफ द ट्रेड पॉलिसी इंडिया रे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा मिलला। एंड इन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड बिकॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इट रेंडर्ड लाख्स ऑफ आर्टिसन अनएम्प्लॉयड। बहुत गुड़ा सब आर्टिसन्स माने अनएम्प्लॉयड हो गले। ओके एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए biggest problem still in our country and good time आसो जदि अधिक अनएम्प्लॉयमेंट हो जिवो सो आमे भी रिवोल्ट करबा मिसी। ओके next right in the economic policy heavy land revenue collection okay then right religious causes ये रिलीजियस रो भी एंगल गोटे अच्छी 1813 रे जो क्रिश्चियन मिशनरीज माने आसिले सो 1813 रे जो क्रिश्चियन मिशनरीज माने आसिले से माने जेतेबेले तांकर धर्म को प्रचार कले
सो लोक मानकर सेंटिमेंट सहित तांके इंटरफियरेंस कले लोक मानकर धर्म सहित से माने इंटरफियरेंस कले लोक मानकर जो प्रथा थिला से प्रथा जाक कुप्रथा भी हो बाकी ताको बंद करने पे चेष्टा कले जो जिनस कि से आमर इंडियंस मानक से जिनस गोटे माने जोटा कि सदियों से चली आई हुई परंपरा एंड से परंपरा को जब तुम जब छेड़छाड़ कर तो इंडिया रे यू नो धर्म को लेकिन केते सेंसिटिव एंड बिकॉज ऑफ दैट सेंसिटिवनेस ये जो रिलीजियस एंगल लगी भी गोटे वन वी कैन से कि जिते धर्म को लेकिन धर्म उपरे जो आँच आसला तो लोक मैंने सही पारे ना ओके सो बिकॉज ऑफ दिस क्रिश्चियन मिशनरीज से मैंने आसिकी बहुत गुड़ा लोक को कन्वर्ट भी करते ओके बहुत गुड़ा लोक को तांकर धर्म प्रचार पाई तांके डिफरेंट डिफरेंट जो भी तांकर कुप्रथा थिला जैसे सती प्रथा तो बैन ऑन सती प्रथा भी करते बैन ऑन सती विडो रीमैरेज भाई भी एनकरेज करते एनकरेजमेंट ऑफ विडो रीमैरेज एनकरेजमेंट ऑफ विडो रीमैरेज करते गोटे एक्ट थिला रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट तो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट पास होता 1850 रे एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट कौन कि जदि आमर कॉमनली सोसाइटी रे कौन होता सोसाइटी रे कि जदि क्रिश्चियन मिशनरी 1859 सर सर 1859 1850 50 this is okay सो आमर सोसाइटी रे कौन होता जदि क्रिश्चियन मिशनरीज माने किसी लोक को धर्म तांकर परिवर्तन करुथिले तो मनकर आपण मैंने सब मनकर निजर धर्म को परिवर्तन कले सो आपणकर माँ बापा कहे कि जदि तुम धर्म परिवर्तन हो जाइछ तुम मो घर पलाओ मोर प्रॉपर्टी राइट रे आ तुमर किसी भी अधिकार रहबो नहीं आफ्टर कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी और आफ्टर एडॉप्टिंग क्रिश्चियनिटी सो सरकार कौन कला गोटे रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट पास कला 1850 रे एंड एटा कानूनी करदेला कि जदि गोटे मनीष जदि निज को कन्वर्ट करला अलग धर्म रे सो ताकू लीगली अधिकार अच्छी कि तार पेरेंट्स रो प्रॉपर्टी से रिटेन करके रखी पारिबो एंड दैट इज रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 व्हिच वाज नॉट लाइक्ड बाय द सोसाइटी ओके नेक्स्ट राइट कि in order to extend market in order to extend market in order to extend market emphasis on socio-religious reforms emphasis on socio रिलीजियस रिफॉर्म तो सोसाइटी रे एक्चुअली रिफॉर्म बहुत गुड़ा अणा है आम देखी सोशल पॉलिसी रे इन द इंडस्ट्रियल फेज कि बहुत गुड़ा सब सती प्रथा है विडो रीमैरेज है स्कूल कॉलेज जाक ओपन होता तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जाक देखा मिलता एंड ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है लिखु बट it irritated the common Indians it irritated the common Indians मानों को इरिटेशन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स नेक्स्ट राइट मिलिटरी कॉजेस मिलिटरी कॉजेस कौन
बहुत गुड़े मिलिटेरी लॉ रे रेसियलिज्म चलता। रेसियलिज्म रेस को नहीं कि एक्चुअली रिक्रुटमेंट करा होता। तो मिलिटेरी रे भी लोक मान भितर डिस्क्रिमिनेशन बेसी देखा मिलूला। तो व्हाइट यूरोपियंस एंड ब्लैक इंडियंस को नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन देखा मिलूला। लो सैलरी दिया होता आमर ब्लैक इंडियंस को, लो सैलरी एंड प्रमोशन टू इंडियन सिपाही, लो सैलरीज एंड प्रमोशन टू इंडियन सिपाही। गोटे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास कर जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट एटा कनिंग पास करथिले। कैनिंग जी कि सेतले थिले 1856 परे। तो कैनिंग जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास कले, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट सबू इंडियन सिपाहीज को ओवरसीज देवाक पड़ो। ओवरसीज 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 माने समुद्र पार करके अलग जगह को जाइकी ब्रिटिश सरकार पाई काम करने को पड़ो। सो बट इंडियंस माने तांकर मान्यता थिला कि जी गोटे थर समुद्र को पार करिछि तो सी तार धर्म को हरैछि, सी आउ मनीष मनीष आउ रही पारिबो नहीं। तो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग वाज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम कि इंडियंस माने जदि जदि गोटे ब्राह्मण से जदि समुद्र पार करके अलग देश को गला तो तार पैता जो अच्छी एक्चुअली मारा हो एंड सी एक्चुअली सी धर्म रू मारा हो। सो दैट काइंड ऑफ एक्ट माने सीट प्रकार थिला। तो बट कनिंग जो एक्ट पास कले कि कंपलसरी करदेले कि जे भी इंडियन सोल्जर अच्छी ताकू तो ओवर आम जदि चाहिए ताकू ओवरसीज पठेबू एंड ताकू काम करेबू एंड सीटा बाध्य कंपलसरी ताकू जीवाक पड़ो। तो दिस काइंड ऑफ जबरदस्ती काइंड ऑफ जिनस से मानू भल लगिला ना इंडियंस मानू। ओके नेक्स्ट राइट इमीडिएट कॉजेस। इमीडिएट कॉजेस लिखु एनफील्ड राइफल। तो से टाइम गोटे राइफल आसला जस्ट नुआ राइफल गोटे थिला एंड ये राइफल रे एक्चुअली गोटे र्यूमर स्प्रेड होगा सबुआड़े कि राइफल रे एक्चुअली जो गुली आ बंदूक जो यूज होची सेठी एक्चुअली गोटे सुअर एंड गाई काउ एंड पिग रो चर्बी को यूज करा हुए। ओके इन दिस एनफील्ड राइफल एंड सो एनफील्ड राइफल जो नुआ राइफल थिला ताको यूज करने इंडियन सिपाहीज माने नाराज थे एंड इटा गोटे इमीडिएट कजेस थिला बिकज इटा वेरी सेंसिटिव जिनस तांके गाई को माता बोले आम हिंदू माने ब्राह्मण्स माने गाई हमारी माता है। तो सी माँ को एक्चुअली किमती माँ चर्बी रू तैयारी जिनस को आम केमती यूज करवा। तो से काइंड ऑफ जो थिंकिंग थिला से थिंकिंग लगी डायरेक्टली से माने रिवोल्ट एक्चुअली देखा मिलता। ओके सो दीज आर द एक्चुअली कजेस जोटा कि आम भल भाव डिस्कस कलु। तापर एबे डिस्कस करवा अबाउट द इवेंट और द डेवलपमेंट ऑफ द रिवोल्ट। तो डेवलपमेंट ऑफ रिवोल्ट एक्चुअली केवे भी क्वेश्चन आसी नाही सेटा क्वाडू केमती कोन स्टार्ट हेइतला केमती हेइतला बट हाँ आम गोटे जानिया पई ताको डिस्कस करवा बट देखिबा एक्चुअली केमती कोन कोन सब जिंस स्टार्ट हे। ओके तो गोटे जगह थिला दमदम बांग्लादेश रे अछि एबे प्रेजेंटली दमदम बोली गोटे जगह अछि दमदम दमदम रु जिनसटा स्टार्ट है। ओके द दमदम रे जिनस स्टार्ट है बट सेटा वेरी लिमिटेड अमाउंट रे स्टार्ट होइतिला नॉट मच टू ए ग्रेट एक्सटेंट। दमदम बांग्लादेश रे अछि सेटा स्टार्ट है सेठी स्टार्ट है कि तापरे बरहमपुर हमर ओडिसा रे बरहमपुर नहीं एरा भी एक्चुअली से टाइम रे बेंगल रही थिला बेंगल से टाइम रे बांग्लादेश तो एबे हिची सेते बेले बांग्लादेश बेंगल रही थिला
तो नेक्स्ट दमदम रु बरहमपुर को एक्चुअली तापर छोटिया मोटिया रिवोल्ट है। ओके एंड देन बरहमपुर रु बैरकपुर सीधा एक्चुअली बहुत बड़ बैरकपुर इज इन वेस्ट बेंगल एबे प्रेजेंटली वेस्ट बेंगल रे अछि। सो आमे जदि इंडिया रे जदि एबे प्रेजेंटली इंडियन कंटेक्स्ट रे देखबे तो बैरकपुर रु स्टार्ट हो गेला इंडिया पे, बट एज ए होल टोटल को जब देखबे दमदम रु स्टार्ट होले दैट इज इन बांग्लादेश। ओके सो बैरकपुर रे वेस्ट बेंगल रे 29 मार्च 1857 29 मार्च 1857 रे बैरकपुर रे सीटी गोटे 34th इन्फेंट्री जवान मानकर एक्चुअली गोटे ताकर नेमिंग करा नोमेनक्लेचर करा 34th इन्फेंट्री सेठी एक्चुअली थिले मंगल पांडे एंड तांको हमें फर्स्ट सिपाही भी कहूँ मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे को तांके रिवोल्ट कर देथिले, रिवोल्ट करिकी सेठी गोटे जो लोकल ब्रिटिश ऑफिसर थिले हुडसन को मारदेवे। हुडसन को किए मारदेव? मंगल पांडे हुडसन को मारदेवे। हुडसन को मारिला परे मंगल पांडे को तापरे फांसी दे दिया जीवो। ओके मंगल पांडे मरजी एंड ई घटना रु कौन हम कि जस्ट 24 एप्रिल एप्रोक्सीमेटली गोटे मास पर 1857 रे मीरठ इज इन यूपी एंड इन दैट मीरठ 90टा सिपाही 90 सिपाही से मैंने रिफ्यूज करेंगे कि आम जो ग्रीस कैट्रिज जो एनफिल्ड राइफल रे जो ग्रीस कैट्रिज यूज होची ताको आम यूज करूँ ना। तो 19 सिपाहीज मैंने बिकज ऑफ दैट एनफिल्ड राइफल एंड ग्रीस कैट्रिज वाला जो इश्यू थिला ताकू नहीं कि तांके रिवोल्ट करेंगे यूज करेंगे नहीं यूज जदि न करेंगे तो सेमानंकर भितर 85 जन को जेल रे बंदी करा जाइथो। जेतो 85 लोगों को बंदी करा जीवो बाकी रो तांकर सांग साथी माने जो थिले तांके रिवोल्ट कर देबे। ओके जे रिवोल्ट करिवे तांकर जते भी 85 लोक को जो कारागार दिया जाइथला सेमानंकु एक्चुअली छड़े कि तापरे से माने फुल रिवोल्ट कर देबे एंड सी जो मीरठ रे जो जनरल ऑफिसर थिले जनरल हिविट सरेंडर कर देबे तांके। जनरल हिविट वाज द इंचार्ज ऑफ मीरठ जेल एंड मीरठ रे एक्चुअली तांके इंचार्ज थिले जनरल हिविट को हरे कि जते भी सिपाहीज माने थिले से माने डायरेक्टली पळेबे दिल्ली मेरिट रूट पळेबे दिल्ली 11 मई 1857 रे पळेबे दिल्ली रे एक्चुअली किए थिला दिल्ली रे थिले हमर बहादुर शाह जाफर जे कि द लास्ट मुगल एम्परर। बहादुर शाह जाफर वाज द एम्परर बट बहादुर शाह जाफर बुढ़ा हो जाइथिले। सो तांके गोटे बखत खान को अपॉइंट करेंगे तांकर जे कि सब संभालुवे बखत खान को कहबे कि देखो सिपाहीज माने आछंती तांकर सहित मिसिकी तमे मिसा हल्ला बोल करो तुम मिसा 1857 रिवोल्ट रे योगदान दियो। तो देन तापरे धीरे धीरे एबे दिल्ली रु सब आड़े स्प्रेड हिजिवो। बरेली यूपी बिहार झारखंड इवन महाराष्ट्र वाला किसी रीजन कर्नाटक वाला किसी रीजन एमती टोटली पूरा ऑल ओवर इंडिया रो बहुत गुड़ा एरिया रे ऑल ओवर इंडिया तो नहीं बट बहुत गुड़ा एरिया रे सेटा स्प्रेड हिजिवो। तापरे लखनऊ को भी स्प्रेड हिजिवो कानपुर को स्प्रेड हिजिवो ग्वालियर रे स्प्रेड हिजिवो एमती धीरे धीरे अलग अलग जगह रे स्प्रेड हिजिवो। तो अलग अलग जो जगह स्प्रेड हो दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट कौन कि जदि आपंकर प्रिलिम्स क्वेश्चन आसुची कि दिल्ली रे एक्चुअली 1857 रिवोल्ट रो लीडर किए थिला तो बहादुर शाह जाफर थिले बट बहादुर शाह जाफर बुढ़ा जाइथिले तो रियल किए थिले बखत खान थिले बख्त खान। ओके दिल्ली ही वाज द रियल मैन ही वाज द रियल एम्परर। देन जदि क्वेश्चन आसुची कि कानपुर रे किए हेड करथिला कानपुर तो कानपुर रे थिले नाना साहेब। कानपुर रे किए हेड करथिला नाना साहेब। देन राइट अवध बा लखनऊ टाइप ऑफ एरिया रे यू विल सी रानी हजरत महल
हजरत महल हाथी रे बोलते हुए आवाज रे हजरत महल हरियाणा रे किए एक्चुअली नेतृत्व करथिले हरियाणा तो हरियाणा रे थिले हमर राव तुलाराम तो मैच एटा कलम टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रिलिम्स रे आसी पारे हरियाणा रे किए थिले राव तुलाराम अल्लाहाबाद रे किए थिले प्रयागराज लियाकत अली LIAQATALI लियाकत अली प्रयागराज देन बरेली रे थिले खान बहादुर खान बरेली रे थिले खान बहादुर खान नेक्स्ट इज बिहार रे गोटे जगह अच्छी आरा रे थिले कुंवर सिंह वेरी इंपोर्टेंट कुंवर सिंह पूरा पानी पी देथिले ब्रिटिशर्स मानु कुंवर सिंह देन हमर झांसी रे जानथिबे आपण रानी लक्ष्मीबाई झांसी रे एंड ओडिशा रे मेनली संबलपुर रे थिले सुरेंद्र साई रो रिपोर्ट आमे डिटेल देखिबा डोंट वरी मेंस रो सिलेबस रे अछि से तो हमें डिटेल देखिबा संबलपुर सुरेंद्र साई ओके प्रिलिम्स रो किछि फैक्ट जाक जदि क्वेश्चन जदि आछि प्रिलिम्स रो एक्चुअली देखुछ हम तो मेनली जदि क्वेश्चन आछि कि पीएम किए थिले प्रधानमंत्री किए थिले मेनली तो पर्म स्टोर एटा इंग्लैंड रो मेनली ब्रिटेन रो किए प्रधानमंत्री थिले तो पर्म स्टोर प्रिलिम्स रो जदि क्वेश्चन आछि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिले द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और 1857 रो जो रिवोल्ट हितला सेतेबेले गवर्नर जनरल किए थिले तो लॉर्ड कैनिंग हेलो सर सर पीएम किए PARMSTORM ओके पार्मस्टोन ब्रिटेन रो पीएम थिले ओके your voice is not audible your voice is cracking The last governor of General Lord Canning. 1857 रिवोल्ट रे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिले लॉर्ड कैनिंग थिले एंड हु वाज द मुगल एम्परर हाँ कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकॉज 1858 रे मु कोई भी डोंट वरी एबे जस्ट राइट कि गवर्नर जनरल किए थिले 1857 रिवोल्ट रे कैनिंग थिले ओके एंड हु वाज द मुगल एम्परर बहादुर शाह जाफर was the emperor
एंड जदि क्वेश्चन आछि कि कु ऑफिसर आकु सप्रेस करिथिला ग्रेट रिवोल्ट को 1857 रिवोल्ट को किए दबैथिला सो दैट वाज कैंपबेल कैंपबेल होचंती सी ऑफिसर जी कि 1857 रिवोल्ट को तांकर नेतृत्व रे टोटली सी 1857 रिवोल्ट को सप्रेस करिथिले बट डिफरेंट डिफरेंट जगह रे डिफरेंट ऑफिसर्स माने थिले अलाहाबाद रे हैवलॉक थिले झांसी रे ह्यूजरोज थिले दिल्ली रे हुडसन बा निकोलसन भी थिले अवध रे मेनली कैंपबेल थिले बट रियल हेड वाज एक्चुअली कैंपबेल जे कि ताकू सप्रेस करिथिले 1857 रे रिवोल्ट को सो ये सब प्रिलिम्स पई किछि पॉइंट जाको मु कहली जोटा कि प्रिलिम्स पई इंपोर्टेंट होई थाय पारे ओके सो एबे मेंस रिलेटेड जिंस आमे डिस्कस करिया जोटा कि नेचर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट right nature of the great revolt so what was the nature माने कौन कि जो ग्रेट रिवोल्ट रो एक्चुअली आकु केते जण कहंती कि एरा होची सिपोई रिवोल्ट आर नेचर ता कौन सिपोई इटा सिपाही विद्रोह जस्ट ए सिपाही विद्रोह बट केते जण कहंती कि इट इज ए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस सो किसी स्कॉलर्स माने आको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहंती किसी स्कॉलर सिपाही रिवोल्ट कहंती तो कौन पे सिपाही रिवोल्ट कहउचंती सेटा भी देखिबा कौन पे सिपाही रिवोल्ट कहिले सेटा खराब हेबो सेटा भी देखिबा हेल सो आमे कौन कहउचू आको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कोन पे कहउचू सेटा देखिबा एंड तारो पछर सॉलिड रीजन भी देखिबा कि आको कोन पे हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ही कहबा एंड लास्ट रे आमे आरो नेचर को कोन कहबा सेटा भी हमें देखिबा ओके सो राइट earlier it was characterized as a sepoy revolt earlier it was characterized as a sepoy mutiny जल्दी जल्दी लिखंतु earlier it was characterized as sepoy mutiny due to the following factors ताकू कौन पे सिपोई म्यूटिनी कहूचु सेटा हमें फर्स्ट हमें डिस्कस करबा राइट फर्स्टली स्कॉलर्स डिपेंडेंट upon government archives for the study of great revolt while these sources was biased in nature approach तामाने कौन कि बहुत गुड़ा स्कॉलर्स माने गवर्नमेंट रो आर्काइव्स ऊपर एक्चुअली डिपेंडेंट होउचंती जदी तांके जेतोले ग्रेट रिवोल्ट रो नेचर जानिया पे चाहउचंती तांके गवर्नमेंट रो सोर्सेस को फॉलो करचंती बट को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट निजे तार सोर्सेस रे केबे भी लिखिबो कि एटा गोटे बहुत बड़ रिवोल्ट थिला इंडिपेंडेंस पई एंड आमे अत्याचार करूथुलु सो आमर अत्याचार को लेकिन इंडियंस माने रिवोल्ट करथिले सेमिति केबे भी गवर्नमेंट सोर्सेस लिखिबे नै जेहेतु से माने शासन करूचंती तो सब बेले पॉलिटिक्स रे कोन हबो जे शासन करूची तार इमेज को क्लियर रखिया पई से सब बेले सोर्सेस सहित खेलवाड़ करिवो बा राइट सोर्सेस को से माने ताकू बा जो भी सोर्सेस से माने इंट्रोड्यूस करिवे सेटा कोन रहबो बायस्ड माने ताकू सी हिसाब रे लिखा जाइथिबो कि गवर्नमेंट ऊपर किछि भी आँच न आसु ओके
सो गवर्नमेंट रो सोर्सेस को जदि एबे जिंती हमें जनरली हुए कि मोदी मीडिया कि मोदी रो मीडिया माने मोदी रो अगेंस्ट किसी कहू नांती बिकज मोदी एक्चुअली बहुत गुड़ा पैसा जाक सब आड़े इन्वेस्टमेंट होती इन मीडिया सब मीडिया एक्चुअली मोदी ये एमती चर्चा चलुची तो एक्चुअली सबू जी भी गवर्नमेंट हो इफ यू सी महारानी सरकार गोटे वेब सीरीज बाहर बिहार पॉलिटिक्स उपर महारानी बोले गोटे सीजन 3rd सीजन भी लॉन्च होता इफ यू सी डैट अबाउट पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स रे एक्चुअली जिनस हुए कौन कि गवर्नमेंट निजर इमेज को क्लीन रखापी से मैंने किसी भी एक्सटेंड जापारती तो सिमिलरली गवर्नमेंट रो सोर्सेस को जी भी फॉलो करके स्टडी करिवो तो सी गवर्नमेंट रो अगेंस्ट किसी लेखा ही नथिवो दैट वाज बायस इन अप्रोच एंड दैट्स व्हाई सेठी कुआ हेची इट वाज जस्ट ए सिपोई म्यूटिनी it was just a minor episode in our history and it was not a significant revolt so that was the first thing right the second thing initiative for uprising was taken by Sepoy of Bengal आर्मी तो सेकेंड पॉइंट कहूँ कि आपको सिपोई म्यूटिनी आम कौन कहूँ बिकज जेहेतु ये रिवोल्ट को सिपोई माने स्टार्ट करथिले सिपाही माने स्टार्ट करथिले तेणु करी आपको आम सिपोई म्यूटिनी कहबा ओके एमिति बोली आगे भाबा जाउथुला बट इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू कॉल दिस रिवोल्ट एज सिपोई म्यूटिनी okay so right why the term sepoy mutiny is not appropriate for this great revolt why the term Sepoy mutiny is not appropriate for this great revolt तो फास्ट आम देखलु कि आपको सिपोई रिवोल्ट कौन कहूँ बिकज आम देखलु कि जदि तुम गवर्नमेंट रो आर्काइव्स उपर डिपेंडेंट हेबो जोटा कि बायस अप्रोच अच्छी सो यू विल डेफिनेटली गेट टू नो दैट इट वाज ए सिपोई रिवोल्ट एंड जेहेतु इनिशिएटिव सिपोइस माने नहीं स्टार्टिंग सिपोइस माने करथिले सो तेणुकरी आम कहूँ सिपोई म्यूटिनी बट सिपोई म्यूटिनी जदि कहूँ एक्चुअली दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट यू आर ओनली नोइंग द वन साइड ऑफ द स्टोरी सब जिन देखिकी देखुन तेणु आपंकर एक्चुअली एटा लिमिटेड एप्रोच रे तुम सिपोई म्यूटिनी कहूँ सो एबे नेक्स्ट रीजन जाक देबा कि आपको कौन पे सिपोई म्यूटिनी आम कहबानी राइट apart from sepoys the people from all stratas of society participated in this great revolt my voice break हो कि No, sir. Okay. So apart from sepoys, the people from all strata of society participated in this great revolt. तो हमें फर्स्ट पॉइंट कौन लिखिलु कि आपको सिपोई म्यूटिनी आम कौन पे कहूँ बिकज स्टार्टिंग से सिपोइस माने करथिले एंड मेनली सिपोइस माने रहउथिले एंड सिपोइस माने ही करथिले दैट्स व्हाई ताको सिपोई म्यूटिनी कह जाउतला बट आम जदि माइन्यूटली स्टडी देखिबो करबा तो हमको देखिया पे मिलिबो कि नोबल्स पीजेंट्स आर्टिसंस एग्रीकल्चरल वर्कर्स इवन ट्राइबल्स माने भी पार्टिसिपेट करथिले अपार्ट फ्रॉम द सिपोइस तो ऑल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी सब पार्टिसिपेट करथिले तो समस्तंकर जदि योगदान अच्छी तो तुम केमिति ताको सिपोई म्यूटिनी कहूछ ओके तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज अपार्ट फ्रॉम सिपोई द पीपल फ्रॉम ऑल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन दिस ग्रेट रिवोल्ट ओके नेक्स्ट सेकंड पॉइंट राइट every military barrack
was supported by civilians in nearby village. एंड जिते भी मिलिटरी बैरिक्स थिले सेमानंकु सिविलियंस माने भी सपोर्ट देइथिले इन नियर बाय विलेज. So every military barracks was supported by civilians in nearby village. Now third point, right? Even sepoy came from peasant family. So they shared their grievances. So sepoys माने से माने निजे पीजेंट फैमिली रु बिलोंग करुथिले. सो तांके जानुथिले सिपोइस माने जानिथिले चिट्ठी माध्यमरु कि तांकर पेरेंट्स जे कि पीजेंट माने थिले से माने बहुत दुखी अछंती फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड द एनेक्सेशन पॉलिसी. अवध को एनेक्स कर देथिले. तो मेनली सबु गुडा जो एरिया को एनेक्सेशन करा हैला, लैंड रेवेन्यू अधिक निया हैला, पीजेंट्स मानकर से अत्याचार होउथला एंड से पीजेंट्स मानकर ही पुओ माने सिपोइस हेकी काम करुथिले. तो सिपोइस माने भी पीजेंट्स मानकर दुख को बुझी पारिले एंड से माने तेणु करी आमे कोइ पाइबाने कि सिपोइस माने तांको पई युद्ध करि नथिले कि बाकी टोटल इंडिया रो जो इशू को नै कि तांके एक्चुअली युद्ध करिथिले. पीजेंट फैमिलीज मानकर भी मुद्दा बा सेमानकर भी दुख को नै कि तांके रिवोल्ट करिथिले. तो ताको आमे डायरेक्टली जदि सिपोई म्यूटिनी कहूछु तो आमे बहुत बड़ माने ताको लिमिटेड अप्रोच रे देखुछु. तार क्लियर पिक्चर आमे दे पारुनु जदि आमे सिपोई म्यूटिनी कहबा. ओके नेक्स्ट देखंतु व्हाई डज it deserve to be characterized why does it deserve to be characterized as first war of independence? Why does it deserve to be characterized as first war of independence? तो क्वेश्चन मार्क आपको कौन पे हमें फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहबा सेटा हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करबा. नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कस करबा कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस आपको कौन पे कुआ जाउथिला, देन कौन आर सिग्निफिकेंस थिला, कु स्कॉलर्स माने कौन कौन आ विषय रे टिप्पणी दैछन सेटा भी देखिबा. देन रिजल्ट माने कौन कि 1857 रो रिवोल्ट परे सांत्वना देवा पई ब्रिटिश सरकार कौन कौन स्टेप नहीं थिले सेटा भी हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिबा. देन 1857 रो रिवोल्ट पूरा सरी जिवो. देन वी विल देन डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल फेज. ओके किछि डाउट अछि यू कैन आस्क मी. बुझी होची समस्त को? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Hello, sir. हाँ चिन्मय कुहतु. सर जो इकोनॉमिक कॉजेस रे ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसी तार गोटे कॉज थिला टैक्सेशन ही गोटे कॉज हबो ना आ कोन भी आसीबो सर? सबू आसीपार. ब्रिटिशर्स मानकर जिते भी इकोनॉमिक पॉलिसी थिला जेमिति कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी होगला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी होगला, तांकर ट्रेड पॉलिसी होगला, वन साइडेड फ्री ट्रेड जे माने करथले सब जिन पड़े आसो.
सर जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सेमाने रॉ मटेरियल इंडिया रे रॉ मटेरियल गुडा को आनी कि इंडिया रे प्रोड्यूस होतला सब मार्केट होतला ब्रिटिशर्स को एरिया रे तो सेटा रे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़िया कथा ना सर ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ କି ଡିଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିସି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫେଜ୍ ସେଇଠି ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆବାଉଟ୍ ଡିଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ସୋ ଡିଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ରେ ମେନଲି ହେଉଥିଲା କ'ଣ कि ब्रिटेन रे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता ब्रिटेन रो जेहेतु इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो आमर इंडिया रे जो छोट छोट इंडस्ट्रीज थिले से माने कंपटीशन करि पारिले नाही एंड से माने जेहेतु से माने कम्पीट करि पारे नाही तो तांके अनएम्प्लॉयड हेकी तांकर धंदा को छाड़ी की तांके एग्रीकल्चर वर्ड को शिफ्ट हो गले ओके तो ये शॉर्टली मु कहली बट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को एज ए होल आम डिस्कस भी करिछु तार फैक्टर्स भी डिस्कस करिछु तार रीजन भी डिस्कस करिछु तार इंपैक्ट भी डिस्कस करिछु ओके सर थैंक यू सर हेलो सर यस सर मी एनेक्स मीनिंग कौन एनेक्स आज्ञा सर एनेक्स माने एरिया को कैप्चर कर रहा है जमी ओडिशा को जदि आज झारखंड एनेक्स कर दो माने ओडिशा पड़ेला झारखंड को अख्तियार करियो सर थैंक यू ओडिया वर्ड होची अख्तियार करियाटा थैंक्स फॉर द वर्ड ओके नो डाउट्स सो ऑल द बेस्ट भल से नोट्स को अपडेट करंतु मु नेशनलिज्म रो अपडेट कर दीची देन प्रीलिम्स पई पीजेंट्स मानकर रिवोल्ट एंड ट्राइबल रिवोल्ट भी आज देखिबी अपलोड कर देबी एंड 1857 रो रिवोल्ट भी मु अपलोड कर देबी सर काली रो वीडियो टा अपलोड होइनी हाँ मेरे सब एक्चुअली मु सेंड कर देबी एक्चुअली नेटवर्क टिके प्रॉब्लम थिला एंड एठी बहुत सर वीडियो कौन सर कौन कहले श्रवण सर वीडियो की पीडीएफ टा अपलोड करिवे हाँ सेटा अपलोड हो जिवो ई वीक सरू सरू सबू पीडीएफ सबू वीडियो अपलोड हो जिवो डोंट वरी सर ओके ठीक अच्छे मिसिबा नेक्स्ट क्लास रे जय जगन्नाथ आई विश यू ऑल द बेस्ट भल से पाठ पढ़ंतु।